Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Simran Ayal. So guys, today we are going to discuss about writing task 2. So in writing task 2, different kinds of students face disparate sort of problems. Some student may face problem how to generate ideas in writing task 2. Some face problem in elaboration, lexical resources, sentence structure, sentence formation, complex conditional sentences. So it's vary. But don't worry, in this video today I'm going to let you know each and everything about writing task 2. If you watch this video till the end, I bet you that you will definitely get a very good score in writing task 2. So just keep in your mind the words that I'm going to tell you. We all know that there are total 9 types of essay in writing task 2, but in this video we are going to discuss about the one of the most critical type in which student face lot of obstacle, that is advantages outweigh disadvantages type. This type is also known by the name of 70-30. So what's the meaning of this line? Advantages more, disadvantages less. Okay, so let's see how to make an introduction. So in order to make introduction we just need two things. First one is rephrase and second one is thesis line. Okay, rephrasing means paraphrase. We have to rephrase the given question by using good synonyms, and don't use cramming lines in thesis line, just keep in your mind. Okay, after that, body paragraph 1. In body paragraph 1 we write idea, explain, idea, result means total 2 ideas. Okay, 2 ideas we have to write in body paragraph 1 and there is no need of example in it. After that, body paragraph 2, 1 idea, we have to explain it, example and result. BP3, idea, explain, example and result. Conclusion, although BP1 idea, I believe that BP2 and BP3 ideas. I hope so. आपको structure तो at least clear होगा. So let's see our today's question. More and more people are choosing to work from home since the pandemic. Do the advantages of working from home outweigh the disadvantages? Just remember one thing. Most of the students are not getting good score in writing task 2 because they don't read the question thoroughly. So firstly, you have to read the question properly, understand it what the question is saying. If you fulfill the demand of the question, then you can score well. So what the question say? More and more people means काफ़ी ज़्यादा लोग चूजिंग टू वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करना प्रेफर कर रहे हैं पैंडमिक से. पैंडमिक क्या है? अब देखो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ना एक वर्ड के बीच में कन्फ्यूजन होते हैं. एक होता है हमारा एपिडेमिक और एक होता है हमारा ये पैंडमिक. इसके बीच में क्या डिफ्रेंशिएट है? देखो, जो एपिडेमिक होता है वो क्या होता है? जब कोई बीमारी एक पर्टिकुलर एरिया में फैली होती है हम उसको बोलते हैं एपिडेमिक. लेकिन जो पैंडमिक होता है जब एक बीमारी है वो काफ़ी ज़्यादा जगहों में फैल जाती है. लाइक जैसे कोविड था, हम उसको क्या बोलते थे? पैंडमिक बोलते थे ना, कोरोना पैंडमिक बोलते थे. क्यों? क्योंकि वो बीमारी थी, वो बहुत सारी कंट्रीज़ में स्प्रेड हो गई थी, तो हम उसको क्या बोलते थे? पैंडमिक बोलते थे. अगर वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहती तो हम उसको एपिडेमिक बोलते. ठीक है, कि पैंडमिक से, कोरोना से क्या है भी काफ़ी लोग हैं अब वो घर से काम करना प्रेफर करते हैं. डू द एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम आउटवे द डिसएडवांटेजेस. मतलब घर से काम करने के जो फ़ायदे हैं, उन्होंने बोला कि जो घर से काम करने के फ़ायदे उसको आउटवे करो. आउटवे का मतलब होता है ज़्यादा करो, एडवांटेजेस ज़्यादा करो और डिसएडवांटेजेस को कम करो. ये हमारे पास क्वेश्चन है. ठीक है, हमने अच्छे से समझ लिया. अब देखो, अब इसकी बनेगी इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के लिए रीफ्रेज करना होता है. ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ना पैंडमिक तक, इसको हम रीफ्रेज करेंगे, अपनी वर्डिंग में चेंज करेंगे. जिसका सिनोनिम आता होगा लिख देंगे, जिसका नहीं आता कोई बात नहीं, सेम का सेम रहने देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन 5 बैंड essay and 7+ बैंड essay. So just watch this video till the end. You will definitely get more ins and out related to writing task 2. Okay, writing task 2 is not a rocket science if you know the right guidance, if you know all the tips and tricks. Okay, so here you can see my introduction. So it's a 5 band introduction. Let's convert into 7+. It is believed by, it is considered by. So believed की जगह पर मैंने सिनोनिम लिख दिया consider. Some people
सम इंडिजीनियस, इंडिजीनियस भी स्नानियम है, पीपल का स्नानियम है, ठीक है। वर्किंग फ्रॉम होम को मैंने लिखा रिमोट वर्किंग, ओके। हैज़ बिकम कॉमन, हैज़ बिकम पॉपुलर ट्रेंड आफ्टर द पेंडेमिक, इन द पोस्ट पेंडेमिक एरा। अब आप इसमें कंपेयर करके देखो भी कितना इसमें मैंने चेंज करा। मैंने कुछ खास चेंज नहीं करा है, मैंने सिर्फ कुछ वर्ड्स को अल्टर करा है। अल्टर मीन्स चेंज करा है, ठीक है। अच्छी वोकैबुलरी जो है, हाई फाई वोकैबुलरी नहीं यूज़ करनी है, जस्ट नॉर्मल जो वोकैब होती है हमने वही यूज़ करनी है, ठीक है। ये हमने करा है रीफ्रेज। अब हम देखते हैं इसकी थीसिस लाइन। ये हमारी थीसिस लाइन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे अपने ऐसे में। सो लेट्स सी कैसे करना होता है, क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। इन्होंने यहाँ पे लिखा है दिस ऐसे विल टॉक, मैंने बोला दिस ऐसे विल एक्सप्लिकेट, एक्सप्लिकेट मतलब एक्सप्लेन, ठीक है। बेनिफिट्स आर मोर देन ड्रॉबैक्स, मैंने लिखा मेरिट्स, बेनिफिट्स की जगह पर मेरिट्स लिख दिया, मोर देन की जगह पर सरपास्ड वर्ड यूज़ करा है, ड्रॉबैक्स की जगह पर डीमेरिट्स वर्ड यूज़ करा है। तो अगर आप इतना काम करोगे ना तब आपको हाफ बैंड मिलेगा। इंट्रोडक्शन का हाफ बैंड होता है, जो मुझे ये लगता है कि फ्री का है। अगर आप इतना काम कर लेते हो तो आपको फ्री का हाफ बैंड मिलेगा सिर्फ, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा बॉडी पैराग्राफ 1 की। बॉडी पैराग्राफ 1 को हम कैसे शुरू करते हैं, जिसको हम BP1 भी बोलते हैं। देखो, टू बिगिन विद की जगह पर आप हमेशा यूज़ करो टू कमेंस विद डिसएडवांटेजेस। अब देखो इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। इन्होंने जस्ट बोला टू बिगिन विद कि हम शुरू कर रहे हैं, बट इन्होंने ये नहीं बताया कि एडवांटेजेस से शुरू कर रहे हैं या फिर डिसएडवांटेजेस से शुरू कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे देखो प्रॉपरली बताया कि हम लोग डिसएडवांटेजेस से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बोला द मोस्ट प्रोमिनेंट कंसर्न, इसकी जगह पर इन्होंने लिखा द मेन वन लिखा करो, इसकी जगह पर प्रोमिनेंट वर्ड यूज़ करा करो। कितने अच्छे लेक्सिकल रिसोर्सेज हैं ये, ठीक है। पीपल डू नॉट मीट ईच अदर इन पर्सन, इसकी जगह पर मैंने लिखा द प्रोमिनेंट कंसर्न इज रिडक्शन इन फेस टू फेस कोलैबोरेशन, नॉट मीट विद ईच अदर, और फेस टू फेस इंट्रैक्शन के साथ मैंने उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। मैंने बोला नुकसान है घर से काम करने का, दैट इज़ कि हम फेस टू फेस नहीं मिल सकते, ठीक है। अब इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन में 90% स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। इफ़ योर एक्सप्लेनेशन इज़ गुड देन डेफिनेटली यू कैन स्कोर वेल, इफ़ योर एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट अप टू द मार्क देन it will definitely put devastating impact on your score chart as well. So just keep in your mind, always work on the explanation wherever you are studying. Just remember, improve your explanation, it will help you a lot to boost your score. अगर आप explanation देखो कैसे करनी है explanation, सबसे पहले इन्होंने सीधे ही शुरू कर दिया they work alone and do not talk each other, जबकि मैंने पहले यहाँ पे कनेक्टर लगाया, उनको बताया, लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। व्हेन एम्प्लॉयज़ ऑपरेट फ्रॉम होम, जब एम्प्लॉयज़ घर से काम करते हैं, दे ऑफन मिस स्पॉन्टेनियस डिस्कशन, कलेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग दैट नेचुरली अकर इन द ऑफिस सेटिंग। तो मैंने बोला वो डिस्कशन नहीं कर सकते, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर सकते। अगर वो घर से काम कर रहे हैं तो कोई डिस्कशन नहीं होगी आपस में, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होगी। which can hinder मतलब प्रॉब्लम, which can create problem in the creativity and innovation, जिसकी वजह से इसके क्रिएटिविटी और इनोवेशन के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। whereas इन्होंने क्या लिखा है, they work alone and do not talk with each other। अब इस लाइन में और इस लाइन को आप कंपेयर करके देखो कितना डिफ्रेंशिएट है इसमें, ठीक है। सो आप जस्ट कंपेयर करोगे देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन इम्प्रूव अवर सेंटेंस फॉर्मेशन। Don't consider that it's not a cup of tea for you. Just remember, if you do like in this way, you can score well in writing task 2 within 7 days. Just remember the way, the guidance I am giving you. Okay? अब देखो next क्या लिखा है, this can make people feel lonely। अब इसको मैंने कैसे लिखा, in addition रिमोट वर्किंग कैन लीड टू सोशल आइसोलेशन। लोनली की जगह पर मैंने सोशल आइसोलेशन एंड डिटैचमेंट लिखा कि अगर लोग घर से काम करेंगे तो वो अकेलापन महसूस करेंगे, डिटैचमेंट फेस करेंगे। ऑल्सो सम पीपल हु लाइक टू बी सोशल में नॉट एन्जॉय वर्किंग फ्रॉम होम। इस लाइन को चेंज करके मैंने लिखा स्पेशली फॉर इंडिविजुअल हु रिलाई ऑन इंटरपर्सनल इंट्रैक्शन टू स्टे मोटिवेटेड। मैंने बोला कि वो लोग सोशल आइसोलेट फील करेंगे जिनको सोशल इंट्रैक्शन करना अच्छा लगता है,
ठीक है, जो मैंने इसमें अच्छे अच्छे वोकैबुलरी के वर्ड्स यूज़ करे हैं ना, उसको नोटबुक के ऊपर आपने लिखना है। और जब आपको ऐसा कोई भी ऐसे आता है, देन ट्राई टू यूज़ दीज वर्ड्स in order to improve your lexical resources. We know that lexical resources contribute 25% in your band score. So why not work on it? So this is not good for everyone. इसको मैंने देखो कैसे can negatively impact team bonding and वर्क प्लेस कल्चर। सो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो टीम बॉन्डिंग एंड वर्क प्लेस कल्चर के ऊपर पड़ता है। ओके, इस लाइन को कंपेयर करो इसके साथ, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू राइट रिजल्ट। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है भाई रिजल्ट में लिखना क्या होता है। जो हमारा आइडिया होता है ना, उसी को ही पैराफ्रेज करके हमने यहाँ पे पैराग्राफ 2। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन द अदर हैंड राइट मूविंग टुवर्ड्स बेनिफिट्स, कि अब हम लोग बेनिफिट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। देयर आर ऑल्सो गुड थिंग अबाउट वर्किंग फ्रॉम होम, इसकी जगह पर लिखा देयर आर मल्टी वेरियस मतलब मैनी एडवांटेजेस बिहाइंड रिमोट वर्किंग। रिमोट वर्किंग मतलब घर से काम करना, ठीक है। वन मेन बेनिफिट इसकी जगह पर लिखा बट द प्रोमिनेंट वन, इस मेन की जगह पर वर्ड यूज़ करा मैंने प्रोमिनेंट। पीपल कैन सेव टाइम एंड रिलैक्स मोर, इसकी जगह पर लिखा बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। भी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा बैलेंस क्रिएट हो जाता है। मैंने बोला फ़ायदा क्या है घर से काम करने का, कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन हो जाता है, अच्छा बैलेंस मेंटेन होता है। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कैसे होता है। देखो इन्होंने कुछ भी यहाँ पे कनेक्टर का यूज़ नहीं करा, सिंपली इन्होंने शुरू कर दिया दे से, लेकिन यहाँ पे मैंने देखो टू इलेबोरेट का पहले यूज़ करा है, टू इलेबोरेट का पहले मैंने यूज़ करा है। दे डू नॉट हैव टू ट्रैवल टू ऑफिसेज, भी उनको ऑफिसेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस लाइन को चेंज करा रिमोट एम्प्लॉयज़ जो घर से काम करती हैं, ऑनलाइन काम करती हैं, एलिमिनेट डेली कम्यूटिंग। डेली कम्यूटिंग मतलब आने जाना उनको नहीं पड़ता। अब देखो डू नॉट की जगह पर मैंने वर्ड यूज़ करा एलिमिनेट, ठीक है। ट्रैवल की जगह पर मैंने वर्ड यूज़ करा कम्यूटिंग, ओके। दे की जगह पर मैंने वर्ड यूज़ करा एम्प्लॉयज़। एंड दे कैन स्पेंड मोर टाइम विद देयर फैमिली, कि वो ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं। आइडिया देखो मीनिंग सेम है, मीनिंग ठीक है, लेकिन उनके 5 बैंड क्यों आए हैं, क्योंकि उनकी सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छी नहीं है, ठीक है। अनेबलिंग देम टू डिवोट मोर टाइम टू पर्सनल वेलबींग एंड फैमिली, वो टाइम डिवोट मतलब स्पेंड कर सकते हैं अपनी वेलबींग के ऊपर और फैमिली के साथ। इसको कंपेयर करो इस लाइन को इसके साथ, ठीक है। समझो कैसे लिखा है कि जब एम्प्लॉयज़ घर से काम करेंगे उनको आना जाना नहीं पड़ेगा, वो टाइम वो स्पेंड कर सकते हैं अपनी वेलबींग के ऊपर और फैमिली के ऊपर। कितनी अच्छी इसमें वोकैबुलरी यूज़ करी है ना, तो बस इसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब आइडिया भी हो गया, एक्सप्लेनेशन भी होगी, अब एग्जाम्पल और रिजल्ट की बारी है। फॉर एग्जाम्पल, इधर भी फॉर एग्जाम्पल, मैनी पीपल से दैट दे आर हैप्पियर व्हेन दे वर्क फ्रॉम होम। इसको चेंज करके देखो मैंने कैसे लिखा, अ हेडलाइन इन द एमिनेंट न्यूज़पेपर द मॉस्को टाइम। मॉस्को टाइम न्यूज़पेपर का नेम है, मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। फाउंड दैट 78% ऑफ एम्प्लॉयज़ हु वर्क रिमोटली रिपोर्टेड हायर हैप्पीनेस कंपेयर टू ऑफिस बेस्ड वर्कर्स, कि जो लोग घर से काम करते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं उनके कंपैरिजन जो कि ऑफिस में काम करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने कितना अच्छा स्ट्रक्चर यूज़ करा कंपेयर टू का, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी कंपेयर का यूज़ नहीं करा। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी तो मैटर करते हैं ना हमारे स्कोर बूस्टअप करने के लिए। अगर आप हमारे स्कोर को अमेलियोरेट करना चाहते हैं, इन्हांस करना चाहते हैं, देन वी हैव टू वर्क ऑन द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एज वेल, ठीक है। तो मैंने बोला कि जो लोग रिमोटली काम करते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं इन कंपैरिजन विद दोज हु वर्क इन द ऑफिस। यहाँ पे उन्होंने लिखा रिजल्ट के लिए सो कभी नहीं यूज़ करना चाहिए टास्क 2 में। इसकी जगह पर आप यूज़ करो डज, हैंस, देयरफॉर। इनमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, इट्स एंटायरली अप टू यू, वट एवर यू वांट टू राइट, it's entirely up to you, whatever you can use, okay. But remember one thing, whether you are preparing for the academic or general training, you have to work on these things that I'm telling you. Don't use technical jargon words in writing task 2. Be it simple, use the vocabulary that we use in our daily life, okay. Just work on it and avoid repetition. That is the most important factor in order to get good band score, okay. इट इज़ गुड फॉर देयर मेंटल हेल्थ, मैंने इसको कैसे लिखा, दस इट्स प्रूव दैट वर्क फ्रॉम होम इन्हांस पर्सनल वेलबींग, ठीक है। मेंटल हेल्थ की जगह पर क्या लिखा, पर्सनल वेलबींग, इन्हांस मतलब गुड, इम्प्रूव, ओके। आई होप सो क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट
and the writing task 2 or any other method, let me know in the comment section. I will definitely make video on that topic as well. Paragraph 3. So इन्होंने लिखा another benefit is saving money. इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया, furthermore another significant benefit is cost effectiveness for both employees and employer. भी पैसा बचेगा, सेविंग मनी के लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज़ करा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस फॉर बोथ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर कौन होता है, जो हमारे बॉस होते हैं. एम्प्लॉयज़ मतलब वर्कर. मैंने बोला दोनों का पैसा बचेगा, एम्प्लॉयज़ का भी बचेगा और एम्प्लॉयर का भी बचेगा. अब हम एग्जामिनर को समझाएंगे भी दोनों का पैसा कैसे बचेगा. सो लेट्स सी. वर्कर्स डू नॉट स्पेंड ऑन बस फेयर और लंच आउटसाइड. इस लाइन को चेंज करा मैंने. इंडिविजुअल्स सेव ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड डेली मील्स. ठीक है, बस की जगह पर ट्रांसपोर्टेशन लिख दिया, लंच आउटसाइड की जगह पर डेली मील्स लिख दिया. ठीक है. वाइल कंपनीज की जगह पर ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस ऑपरेशनल cost related to maintenance and utilities. Companies also save money because they do not need to rent big offices. वो अपना पैसा बचा सकते हैं क्योंकि उनको ऑफिसेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इस लाइन को मैंने कैसे लिखा कि उनका पैसा बचेगा आने जाने में. एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा हो गया कि आने जाने में और मील्स का पैसा बच जाएगा. और एम्प्लॉयर को क्या फ़ायदा कि जो रेंट वगैरह है, मेंटेनेंस होगी ऑफिसेज की, यूटिलिटीज़ जो बिल्स होंगे वो सब बच जाएंगे. तो दोनों का फ़ायदा हो गया ना. अगर मैंने यहाँ लिखा था कि दोनों को फ़ायदा होगा तो मैंने एक्सप्लेनेशन में भी दोनों की बात करनी है ना, तभी तो मेरा टास्क रिस्पॉन्स सही जाएगा ना. ठीक है. वन सर्वे इन इंडिया शोड दैट मैनी बिजनेसेस सेव अ लॉट ऑफ मनी बाय लेटिंग वर्कर्स स्टे होम. कि काफ़ी जो बिजनेसेस हैं उन्होंने पैसा सेव करा वर्कर्स को ऑनलाइन काम देखकर. मैंने इसको कैसे लिखा है. अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन इंडियन लॉ मेकर फाउंड दैट कंपनीज, बिजनेसेस की जगह पर कंपनीज अडॉप्टिंग हाइब्रिड मॉडल सेव अप टू 25% इन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट. भी जिन्होंने भी ऑनलाइन काम करवाना उनसे शुरू कर दिया था उन्होंने 25% तक सेविंग करी है. ठीक है. दिस शो दैट बोथ साइड कैन बेनिफिट. दोनों को फ़ायदा होगा. तो मैंने इसको कैसे लिखा, देयरफॉर इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट रिमोट वर्क ऑफर्स इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर ऑल इन्वॉल्व. सो इकोनॉमिक क्या होता है, पैसा होता है ना. तो मैंने बोला जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं सभी को इकोनॉमिक बेनिफिट होता है. मेरा सिर्फ एक आइडिया था कॉस्ट इफेक्टिवनेस. कॉस्ट इफेक्टिवनेस को मैंने एक्सप्लेन करा. कॉस्ट इफेक्टिवनेस के ऊपर मैंने एग्जाम्पल बनाई है एंड उसका मैंने रिजल्ट दिया. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आइडिया ही सफिशिएंट होता है. सिर्फ उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, उसकी एग्जाम्पल दो, उसका रिजल्ट दो, दैट्स इट. वी हैव नो नीड टू ऐड समथिंग एल्स इन आवर राइटिंग टास्क 2. And don't get confused whether we have to write headline or surveys in it or not. Don't puzzle yourself. You can use it. Okay, if you want you can use it freely. It definitely improve your score, but use in an accurate way that I'm using. By the way, if you are interested in online classes then you can text me on the given number and you can also join single module as well. Don't try to sum up, to recapitulate in nutshell for conclusion. Always prefer to use to conclude it or in conclusion. Working from home has some problems like being alone. इस लाइन को चेंज करा मैंने. Although there are few drawbacks like reduce social interaction and collaboration. So alone के लिए मैंने ये वर्ड यूज़ कर दिए, social interaction and collaboration. I believe that, मुझे लगता है advantages such as improved work-life balance, cost effectiveness clearly outweigh the disadvantages. मैंने आपको क्या बोला था, although लगा के BP1 में जो आइडिया लिखा होगा वो लिखना है. I believe that लगा के BP2 और BP3 में जो आइडिया लिखा होगा वो हो जाना है. So although लिख के मैंने यही बोला कि चाहे इससे फेस टू फेस इंट्रैक्शन कम होती है बट आई बिलीव दैट, लेकिन मुझे लगता है कि इससे हमारी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस होती है और ये कॉस्ट इफेक्टिव मतलब पैसा बचाती है लोगों का. ठीक है. सो गाइज आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि मैंने किस तरीके से राइटिंग टास्क 2 को लिखा है. बट इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली क्लियर योर ऑल द डाउट्स. सो अंटिल देन कीप वॉचिंग एंड बी हेल्दी. थैंक यू.